сразу после завершения финансирования продать свои доли на внутренней бирже. Второе – это получение дивидендов, да, часть от прибыли компании. А третье – это уже продажа акций, когда они у вас появятся на обычной бирже. То есть это постепенно будет происходить, ну и каждый принимает решение, в какой момент он хочет, скажем так, выйти из проекта, либо вот наоборот докупить далее. तो एक बार और फिर से मैं आपको बताऊंगा कि जब प्रॉफिट की बात होती है तो आपके पास 3 रास्ते होंगे। पहला आपका रास्ता है डिविडेंड्स। आपके पास जितने भी शेयर्स हैं उसके हिसाब से जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही होगी वो प्रॉफिट फिर बांटा जाएगा आप लोगों में। तो आपका पहला प्रॉफिट हो सकता है डिविडेंड्स के रूप में। आपका दूसरा प्रॉफिट हो सकता है जब इंटरनल एक्सचेंज लॉन्च हो जाएगा तो आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं या किसी और के शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर आपने दूसरे इन्वेस्टर से उसके शेयर्स खरीद लिए तो इसका मतलब कि आपके पास ज़्यादा शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड्स के ज़रिए ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा। और तीसरा आपका तरीका हो गया प्रॉफिट का, वो है कि जब कंपनी IPO हो जाएगी तो फिर आप पूरी तरीके से ओपन मार्केट में अपने शेयर्स बेच सकते हैं। Следующий вопрос. По поводу, вопрос звучит так, что, значит, знаем ли мы о том, что правительство Индии планирует запретить использование криптовалют, и повлияет ли это на получение вознаграждения на партнеров SolarGroup в Индии каким-то образом? अगला सवाल है कि हमसे पूछा जा रहा है कि हमें पता है कि नहीं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर लोग जानना चाहते हैं, आप लोग जानना चाहते हैं कि आपको कैसे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका जो प्रॉफिट जो आएगा वो कैसे मिलेगा। Да, мы знаем, что есть определенные сложности с криптовалютами в Индии. С другой стороны, насколько мне известно, мы общались с юристами на этот счет, еще до конца неизвестно, как поступит правительство Индии. То есть вполне возможно, что все-таки будет не запрет окончательный и бесповоротный, а именно какое-то регулирование. И я на это надеюсь, вот, потому что в большинстве стран, конечно, происходит именно так. Вот исключением является только Китай на данный момент, где действительно криптовалюты запрещают. Во всем другом мире все-таки их разрешают и начинают регулировать. Поэтому еще не все потеряно для криптовалют в Индии, как мне кажется. तो हाँ, हमने भी ये खबर सुनी थी, पढ़ी थी। इसके बाद इसको लेकर के हमने थोड़ी रिसर्च भी की थी। हमारे वकील जो हैं उनके साथ हमने बात भी की थी। तो जहाँ तक हम पूरी सिचुएशन को समझे हैं कि बात यह है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन नहीं किया जाएगा, उस पर कुछ रेगुलेशंस किए जाएंगे, क्योंकि दुनिया में सारे देश जो हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल होती है वो कहीं पे बैन नहीं हो रखी। सरकार उसे केवल अपनी तरफ से रेगुलेट करती है। केवल चाइना में क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन किया गया है। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Если, в общем-то, запретят даже криптовалюты, получится так, то никаких, в общем-то, там проблем с выплатами, да, или вообще с взаимодействием инвесторов из Индии, из компании SolarGroup не произойдет. Потому что способов пополнения личного кабинета, а также способов, которыми SolarGroup может переводить деньги для партнеров из Индии, их огромное множество. И да, криптовалюта – это удобно, но в случае их полного запрета я не вижу никаких, скажем так, рисков прям каких-то для инвесторов из Индии. Просто будет не очень удобно, да, тем инвесторам, которые уже привыкли взаимодействовать с криптовалютами. Но я думаю, что все научатся пользоваться и другими платежными системами. चलिए मान लेते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरी तरीके से बैन लग जाता है, पूरी तरीके से उसे मना कर देते हैं। मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। अगर हम बात करते हैं कि सोलर ग्रुप कंपनी और जो उसके इन्वेस्टर्स हैं इंडिया से, उसकी बात कर रहा हूँ कि कैसे काम आगे किया जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी हमारे पास और बहुत से पेमेंट सॉल्यूशंस हैं जिसके ज़रिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपना प्रॉफिट पा सकते हैं।
और मैं समझता हूं कि आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, आप लोगों को हो सकता है थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन जैसे आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी सीखी थी, वैसे ही आप हमारे जो दूसरे पेमेंट सिस्टम्स हैं, आप उन्हें भी सीख लेंगे जल्द से जल्द। Мгм. Вообще, в целом, мы планируем сейчас полностью легализовать свою деятельность в Индии и в ближайших странах, которые входят в экономический союз. В Индии это, по-моему, 12 стран, там, в том числе Непал и другие страны. И там сейчас в Индии уже на финишной прямой регистрация индийской инвестиционной компании, которая будет работать с большим количеством платежных систем, удобных в Индии. और एक और बात बताना चाहूँगा कि जब ये पेमेंट्स की बात आती है, तो इंडिया में हम अपना एक लीगल ऑफिस भी खोलना चाह रहे हैं, मतलब कि लीगल एक कंपनी भी रजिस्टर करना चाहते हैं। वो केवल इंडिया में नहीं, पूरा जो इंडिया का जो रीजन जो है, उसके आसपास जो देश जो हैं, जैसे नेपाल हो गया, जहाँ तक मुझे पता है, कोई एक स्पेशल एग्रीमेंट है जिसमें 12 देश आते हैं। तो फिर क्या होगा कि जब हम कंपनी को लीगली वहाँ पे रजिस्टर कर देंगे, तो फिर ये जितने भी पेमेंट्स जो सिस्टम है, जो पेमेंट सॉल्यूशंस हैं, वो और भी बढ़ जाएंगे, और भी अलग अलग तरीके के आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे इन्वेस्ट करने का और अपना प्रॉफिट पाने का। Мгм. Вообще вы должны обратить внимание, что Solar Group достаточно гибкая компания, поэтому мы всегда подстраиваемся под всевозможные, скажем так, проблемы, которые у нас возникают. И я уверен, что даже эту проблему серьезно нас это не затронет. और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि सोलर ग्रुप कंपनी जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल कंपनी है। तो जैसे ही कोई नया सवाल उठता है, अगर कोई नई प्रॉब्लम आती है, तो हम फट से उसके कोई सोल्यूशन ढूंढ देते हैं। और अगर कहीं पे कोई कठिनाई आती है, तो हम थोड़ा बहुत उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को एडजस्ट भी कर लेते हैं। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना कीजिए। अगर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कोई बड़ी मुसीबत आती है, तो हम उसका भी हल ज़रूर से फटाफट निकाल देंगे। Мгм. Следующий вопрос. Какие планы на открытие офиса Solar Group в Индии? अगला सवाल है कि इंडिया में ऑफिस खोलने का क्या प्लान है? Мгм. Ну, я думаю, здесь лучше вопрос задать Бирде. Он, наверное, лучше знает прям по последним новостям. Насколько я знаю, открытие подобного офиса планируется. Планируется это сделать, когда вот с коронавирусом ситуация в стране наладится. Вот. Может быть, в ближайшее время это уже и будет оправданно сделать. Бирди, может быть, прокомментируешь, какая сейчас ситуация с офисом? तो जहाँ तक मुझे पता है कि हमारी कंपनी में ऐसे प्लान्स हैं कि इंडिया में ऑफिस खोला जाए, लेकिन इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स में बिरदी जी बताएंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे उन्हें ज़्यादा पता होगा डिटेल्स की, अभी क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही है। Павел, ты хочешь, чтобы он сейчас прямо прокомментировал? Пару слов скажет, да, не нужно долго, там пару слов. तो बिरदी जी, अगर आप चाहें तो आप अभी कुछ 2-3 शब्द कह सकते हैं इस सवाल के ऊपर। Ну, если есть такая информация, может быть, у него пока тоже ее как бы нет. अगर आपके पास कोई नई इंफॉर्मेशन है इंडिया में ऑफिस खुलने को लेकर के, जो जिस सवाल का भी हम जवाब दे रहे हैं, तो मिस्टर पावेल कह रहे हैं कि अगर आपको कोई 2-3 शब्द अगर इसके ऊपर कहने, तो आप कह सकते हैं अभी। धन्यवाद पावेल जी। और जैसे कि हमारे सभी भाई काफी समय से इंतजार कर रहे हैं ऑफिस का, और जब भी हमने ऑफिस के बारे में कुछ किया, तो हमें क्या रहता है कि ये कोविड के कारण हम 2 कदम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। पहली बात, जैसे हम मेरी यात्रा भारत के लिए होती है, और आनंद जी और श्रीधर जी और हमारे अन्य जो पार्टनर अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमने मिलकर कुछ कोटेशन मंगवाई हुई है, और उसको हमने सिर्फ फाइनल करना है कि हमें ये ऑफिस के बारे में क्या, कौन सा सही रहेगा, और उस ऑफिस में हम कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं। और यानी कि मौजूदा हमारा जो एड्रेस जो है, हमारा जो सीए है, उनका ही उन्होंने हमें अनुमति दी हुई है। उन्होंने बोला कि सर, जब तक आप
अपना आगे का काम नहीं करते हैं तो आप हमारा यूज कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा जो मेरा मेन मकसद है मैं वो आपको बताता हूँ। अभी जो चल रहा है, जैसे कि आपने देखा हम इवेंट करवा रहे हैं, और जितना हम ऑफिस में अभी खर्चा करेंगे मेरे हिसाब से हम जो जैसे हमारे लीडर आपने देखा वो हर शहर में जाकर इवेंट करवा रहे हैं, और उससे क्या होगा, लोगों में जितनी ज्यादा जानकारी होगी फिर उन शहरों में हमने एक एक जो वहां का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करना है, एक रिस्पॉन्सिबल खड़ा होगा, और उस हिसाब से हमारा एक ऑफिस नहीं, मैं चाहता हूं कि हर स्टेट बाय स्टेट एक ऑफिस हो जहां के लोकल लोग वहां पर मीटिंग कर सके, जहां वहां पर हमने और भी जो भी ऑप्शन रखी होगी उसका पूरा फायदा ले पाए। तो इसके लिए क्या है कि लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। राजस्थान से जैसे अशोक जी अपने राजस्थान में कर रहे हैं, श्रीधर जी अपने शहर को छोड़कर, उनका 18-18 घंटे का यात्रा रहता है, और वहां पर उदयपुर, अहमदाबाद, वहां पर हमारी काफी चर्चा बातें चल रही हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि अगर हम एक ऑफिस खोलें सिर्फ उसका दिल्ली वाले हमारे पार्टनर उसका फायदा ना ले पाए, तो आनंद जी के यहाँ पर रहेगा तो वहां पर रहेगा। पर मैं चाहता हूँ जैसे आनंद जी है, अशोक जी है, श्रीधर जी हैं, ऐसे और भी हमारे साथ लीडर जुड़े, जाकि हम एक ऑफिस नहीं हर शहर में ऑफिस हो और उसका पूरा फायदा हमारे पार्टनर ले पाए। तो कुछ योजनाएं हमें क्या है कि उसमें हमें ये देखना होता है कि हमें इस ये करके अभी क्या लाभ कर सकते हैं, जहां हमें मीटिंगें करके लोगों को जागरूक करना है, जो हमारा जो मेन गोल है उस पर हमने फोकस करना है। जैसे जो कोविड खत्म हो जाता है, एक अच्छा सेंटर बनाया जाएगा जो मेन होगा, वहां पर आप मीटिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी जो हमारी रहेगी, प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट होंगे उनको आप कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे हो सकता है कि हमारा जो पंजाब का कार्य जो हो रहा है वो उसको भी ऑफिस के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे अगर विशाखापट्टनम और पंजाब को देखा जाए तो काफी लंबा सफर करना पड़ता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं चाहता हूं कि मैं अगर उसको यूज कर पाऊंगा सोलो ग्रुप, हमारा कम खर्चा और हम ज्यादा फायदे में रहे, तो ये भी हो सकता है। तो मैं अभी ये यानी आने वाले 2-3 महीनों में जैसे हमें कुछ अच्छी क्या कहते हैं अच्छा सोल्यूशन मिलता है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना ऑफिस खोल देंगे। धन्यवाद। Да, Павел. Так, ну, в двух словах, да, что он сказал, когда, что? Он сказал, что на данный момент он считает, так как из-за всей ситуации, из-за пандемии, как бы планы меняются сейчас, вот, но он считает, что сейчас важнее сфокусироваться, чтобы и продвигать технологию в разных регионах, вместо того, чтобы просто-напросто потратить деньги, чтобы открыть какой-то один центральный офис в Дели, куда никто, ну, кроме инвесторов из Дели, не смогут приехать. Сначала надо развивать регионы, а со временем там открыть уже маленькие-маленькие такие представительства, офисы, куда могут уже местные люди приходить, собираться, дискуссировать какие-то там вопросы, проблемы, которые у них возникают. И со временем, когда уже оттуда пойдет хорошая отдача, можно будет действительно уже в Дели открыть один главный центр. Это вот в 2 словах, что он сказал. Поддерживаю. Так, следующий вопрос. Такой вот он какой-то не очень четкий, на мой взгляд, но звучит он так. Что планирует компания в будущем? Как будет распределяться прибыль с нашими партнерами? अगला सवाल है कि अगले साल के कंपनी के क्या प्लान्स हैं, और जो कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसे फिर लोगों में कैसे बांटा जाएगा? Ну, по поводу того, как будет распределяться прибыль и вообще в целом, как инвесторы получат прибыль, только что вот до этого мы с вами говорили по этому поводу. Если по поводу распределения самой прибыли говорить, то половина прибыли компании, которая будет распределяться в виде дивидендов, будет распределяться между инвесторами, потому что инвесторам принадлежит 49% компании. तो अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो अभी पहले मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि प्रॉफिट के नाम पे आपके पास 3 तरीके होंगे प्रॉफिट पाने का। अगर बात की जाए डिविडेंड्स के बारे में, तो डिविडेंड्स उन इन्वेस्टर लोगों में बांटा जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट होगा 49% जो है वो इन्वेस्टर लोगों में बांटा जाएगा, और जो डिविडेंड जो होगा वो आपके पास कितने शेयर्स हैं उस समय कंपनी के, उस पर पूरी तरीके से निर्भर करेगा।
Касательно того, что компания в будущем планирует, все же рекомендую вам посмотреть вчерашнюю онлайн-трансляцию, мы об этом там очень много говорили. Если коротко, то это завершение финансирования, завершение строительства, ввод предприятия в эксплуатацию и начало работы над первыми заказами. और अगर आने वाले साल में कंपनी की क्या प्लान्स है उसके बारे में बात की जाए तो आप कल की हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी आपको लिंक दे दिया गया है, आप उसे डिटेल में देखिए, ध्यान से देखिए, वहाँ पे बहुत हमने डिटेल में इसके बारे में बात की है। अभी अगर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो अगले साल का प्लान ये है, पहला है कि हमें फाइनेंसिंग खत्म करनी है, दूसरा है कि हमें कंस्ट्रक्शन खत्म करना है, तीसरा है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देनी है, तो चौथा है कि हमारा पहला ऑर्डर जो है वो पूरा कर देना है। Следующий вопрос. Сколько времени еще займет окончание всех этапов? अगला सवाल है कि सारे इन्वेस्टमेंट स्टेजेस जो हैं उन्हें खत्म होने में कितना समय लगेगा? Здесь этот вопрос нужно задать нам всем, самим себе, потому что этапы финансирования проекта, как и само финансирование, будет завершено тогда, когда будет привлечена вся необходимая для реализации проекта сумма. То есть вчера она была обозначена, сумма была увеличена относительно первых наших расчетов. Все это очень подробно в вчерашней онлайн-трансляции мы разбирали. अब अगर बात की जाए कि इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि ये सवाल हर किसी को अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि जैसे कल की कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि फाइनेंसिंग पूरी तभी होगी जब हर कोई अपनी तरफ से एक्टिविटी दिखाएगा, अपनी किस्तें समय से भरेगा। तो और ये भी बताया गया था कल के जो फाइनेंसिंग की जो फाइनल रकम जो है वो भी अब बढ़ गई है थोड़ी बहुत, तो उसमें कोई मैं आपको एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं दे सकता हूँ, ये सब हम लोगों पे डिपेंड करता है। अगर हम फटाफट जो हमें पूरी रकम जो इकट्ठा करनी है, अगर हम उसे फटाफट इकट्ठा कर देंगे, जिस दिन वो रकम इकट्ठा हो जाएगी उसी दिन फाइनेंसिंग पूरी हो जाएगी। Соответственно, если мы с вами будем финансировать проект в достаточном количестве, то строительные работы уже полностью должны быть завершены во второй половине следующего 2022 года. Поэтому, если мы все с вами будем работать на максимум и обеспечим финансированием наше строительство, оно не будет затягиваться и так далее, то и, в общем-то, этапы также пойдут к завершению в течение следующего 2022 года. Причем, обращая внимание, мы можем перейти там, с 17-го этапа сразу на 20-й. То есть никто не говорит, что мы обязательно должны пройти все этапы. तो अगर आज के दिन देखा जाए कि किस रफ्तार से फाइनेंसिंग जो चल रही है, उसके हिसाब से जो टाइम टेबल हमने फिक्स किया था उसी के हिसाब से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ऐसे ही अगर आगे चलता रहेगा तो प्लान के मुताबिक अगले साल के सेकेंड हाफ में के दौरान हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। और मैं आप लोगों का ध्यान देना चाहूँगा इस बात पे कि ज़रूरी नहीं है कि 17 के बाद 18, 19 और 20 आए। ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल ही अगर फाइनेंसिंग खूब अच्छी स्पीड से चलेगा, जोर शोर से चलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि 17 के बाद हम 18 पे जाएं, 18 के बाद हम सीधे 20 पे आ जाए, क्योंकि कितना हमें पैसा इकट्ठा करना है हमें अभी पता है। तो फिर से एक बार कहूँगा, ये हम सब लोगों पे डिपेंड करता है कि कब ये जाकर के फाइनेंसिंग पूरी हो जाएगी। Коллективные инвестиции – это такой механизм, где кто-то один или какая-то небольшая группа людей не могут достичь каких-то серьезных результатов. Вот этих вот серьезных результатов мы с вами можем достигнуть только все вместе, потому что от каждого участника, от каждого партнера, от каждого инвестора зависит итоговый результат. Поэтому если мы не будем сбавлять темпы, то все будет по тому плану, которому я назвал. Вот. Я уверен, что мы будем соблюдать график строительных работ, и лично я буду делать все для того, чтобы так оно и было.
तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्राउड फंडिंग के जरिए जो इन्वेस्टमेंट इकट्ठा की जाती है उसकी बात करें, तो इस बात का सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है कि यहाँ पे कोई एक कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती कि कब कौन सा काम पूरा हो जाएगा या कौन सा काम कब रुकेगा या क्या होगा। ये हम सब लोगों पे ही निर्भर करता है कि किस रफ्तार से कंपनी आगे बढ़ेगी। जैसे कि मैंने कहा था कि अभी जिस प्रकार से फाइनेंसिंग चल रही है उस प्रकार से हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो टाइम टेबल हमने बनाया था उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जैसे मैंने बताया था कि 2022 में सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में जाकर के कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो खत्म हो जाएगा और फिर हम हमारे अगले जो प्लान जो है उस पे आ जाएंगे, जो है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लॉन्च करना, पहले ऑर्डर्स को पूरा करना। Следующий вопрос. Как обстоят дела в компании Sovelmash на данный момент? अगला सवाल है कि Sovelmash कंपनी के क्या हाल है, कंपनी में क्या चल रहा है। Снова повторюсь, что вчера на онлайн-конференции мы очень подробно это разобрали. Если коротко, то в Sovelmash все замечательно. Сейчас компания находится на очень важной стадии строительства. И сейчас главная задача Sovelmash – это закрытие так называемого теплового контура. То есть это завершение строительства стен и подведение тепла к зданию. Это произойдет в ближайшее время. Это будет очень важным событием, после которого начнется внутренняя отделка здания. Вот примерно такие сейчас основные задачи стоят. तो फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि कल हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस बात को भी लेकर के हमने खूब चर्चा की थी Sovelmash कंपनी में क्या क्या काम चल रहा है। और अभी अगर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो मैं कहूँगा कि अभी सबसे मेन जो काम अभी जो कंपनी का जो है वो है कंस्ट्रक्शन का। तो बिल्डिंग का ढांचा खड़ा हो चुका है, अब काम चल रहा है दीवारें खड़ा करने का, और दीवार खड़ा करने के बाद एक सेंट्रल हीटिंग दी जाती है बिल्डिंग को, जिसके बाद बिल्डिंग के अंदर के भी काम शुरू किए जा सकते हैं। तो अभी कंपनी का ये काम सबसे मेन है और इस पे वो पूरी तरीके से ध्यान दे रही है। Сами строительные работы идут по графику, который был представлен инвесторам еще в начале 2021 года. И то, что мы продолжаем следовать этому графику строительных работ, в очередной раз подтверждает, что дела компании Sovelmash идут отлично. И все это происходит в том числе благодаря всем нам, тем людям, которые своевременно способствуют своевременному финансированию проекта. और अगर कंस्ट्रक्शन की टाइम टेबल की बात की जाए तो इस साल की शुरुआत में जो आप लोगों के सामने कंस्ट्रक्शन का टाइम टेबल पेश किया गया था, सब कुछ उसी के अनुसार चल रहा है, टाइम टेबल के हिसाब चल रहा है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये सब बातें कि हम टाइम टेबल के हिसाब से कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ये आप ही लोगों की बदौलत है जो समय के साथ अपनी किस्तें भर रहे हैं और नए इन्वेस्टर लोग जो आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं कि फाइनेंसिंग में कोई कमी नहीं हो रही, कोई रुकावट नहीं हो रही है। Угу. Так, следующий вопрос. Спрашивают по поводу того, когда будет запущена внутренняя биржа. И об этом мы сегодня тоже уже говорили. Внутренняя биржа будет запущена сразу после завершения финансирования проекта. फिर से एक सवाल अपने आप को दोहरा रहा है कि इंटरनल एक्सचेंज हम कब खोलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी फाइनेंसिंग, हम इंटरनल एक्सचेंज को लॉन्च कर देंगे। Так, и последний вопрос из тех, что у нас был заготовлен, это вопрос по поводу новых проектов от компании Solar Group. Какого типа эти проекты будут в будущем, когда они планируются и так далее. अब अगला आखिरी सवाल जो है इस लिस्ट में से जो मुझे दी गई थी वो ये है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स भविष्य में सोलर ग्रुप कंपनी लाएगी और कैसे उसे मतलब कि वो चूज करते हैं। Так, ну смотрите, точно появятся новые проекты после завершения финансирования действующего проекта. Я уже вам говорил, что при должном финансировании это уже произойдет
в 2022 году. नए प्रोजेक्ट जरूर से आएंगे, लेकिन मैं फिर से आप लोगों का ध्यान दूंगा कि अभी हमें पूरा ध्यान और पूरी मेहनत अभी इस प्रोजेक्ट पे डालनी है, इसकी फाइनेंसिंग खत्म करनी है, और जैसे इसकी फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम अगले फिर प्रोजेक्ट्स आपके सामने पेश कर सकते हैं. Что же это будут за проекты? Ну, во-первых, я надеюсь, что новые проекты будут представлены и Дмитрием Александровичем Дуиновым, потому что нам нравится с ним работать. Мы видим, что это гениальный человек, что технология совмещенных обмоток действительно, скажем так, нужна миру, она эффективна. Поэтому, если будут новые проекты в области технологии совмещенных обмоток «Славянка», мы с удовольствием примем в них участие. तो कौन से भविष्य में नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, इसको भी लेकर के हमने कल कॉन्फ्रेंस में बात की थी. तो एक तो ये हो गया कि मिस्टर डुइनोव जो हैं, अगर आगे जा करके वो कुछ नया सोचते हैं, क्योंकि वो एक जीनियस इंसान है, तो अगर वो कुछ नया सोचेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट उनके दिमाग में आएगा, तो सबसे पहले तो हम उन्हीं के साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहे हैं. तो इसीलिए हमें पता है कि अगर उनका ये आइडिया जो था, ये जो उनकी स्लैवेंकर टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी फेमस है, इतनी डिमांड में है, तो अगर वो कल को जाकर के इस प्रोजेक्ट के बाद कहते हैं कि अब मेरे पास कुछ ऐसा आइडिया है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले हम उन्हीं का प्रोजेक्ट देखना चाहेंगे. Если же говорить про проекты, не связанные с Дмитрием Дуиновым, не связанные с технологией совмещенных обмоток «Славянка», то такие проекты тоже планируются. На данный момент вот все подобные проекты, которые мы серьезно уже рассматриваем для финансирования, они тоже основаны на базе новых технологий и инноваций. Это технологии, это проекты из самых разных, скажем так, направлений. В общем, подробнее мы об этом вам расскажем позже. И, в общем-то, вы узнаете об этом первые однозначно. और मिस्टर डुइनोव को छोड़ करके अगर कुछ दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए, तो इसके बारे में डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे जब समय आएगा. अभी मैं ये कह सकता हूँ कि हम अपना ध्यान उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे फिलहाल डालना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वो है जो भविष्य में दुनिया को चलाएगी भी और गंदगी फैलाने से भी कम करेगी, गंदगी को भी कम करेगी. तो हमारा ध्यान अभी इस तरफ है, टेक्नोलॉजी की तरफ, और एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. Вот почему мы заранее сейчас не рассказываем, что это за проекты? Потому что мы потратили огромное количество сил и времени для того, чтобы эти проекты найти, чтобы договориться с ними, ну и убедиться в том, что это действительно стоящие проекты, над которыми стоит работать. И, конечно, если мы сейчас о них расскажем публично, на большую аудиторию, то мы практически уверены, что эти проекты могут быть перехвачены какими-то крупными инвестфондами. Ну и, конечно, нам бы этого на сегодняшний момент не хотелось. Вот поэтому мы пока что конкретику не рассказываем, но как только это можно будет сделать, мы обязательно вам сообщим. और अगर आप लोग पूछेंगे कि अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में क्यों नहीं बता सकता कि किन ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात चल रही है, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात चल रही है, वो इसलिए क्योंकि हमने बहुत मेहनत लगाई है, बहुत कठिन मेहनत की है कि हम देखें कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको एनालाइज किया, उस पर रिसर्च किया, उस पर स्टडी की. तो आप तो समझ सकते हैं कि फाइनेंसिंग का जो बिजनेस है और ये जो बिजनेस ही जो अपने आप में होता है बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है. तो अगर हम अभी खुलेआम बता देंगे कि हाँ हमें वो टेक्नोलॉजी पसंद है, तो हमें ये डर है कि हो सकता है कोई और इन्वेस्टमेंट कंपनी आकर के उसमें अपना हाथ ना डाल दे. हम लोग एक क्राउड इन्वेस्टमेंट कंपनी है. ज़्यादातर क्या होता है कि कोई एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी आकर के हाथ डाल देती है और कब्जा कर लेती है उस टेक्नोलॉजी पे. तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमसे आने वाले भविष्य में जो टेक्नोलॉजी है वो छीन ली जाए. इसीलिए मैं आपको अभी कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पे आपको पूरी खबर हम पहुँचाएंगे, सब डिटेल्स में बताएंगे. Могу сказать пока только так, то что проекты будут. Они очень интересны, они не менее интересны, чем действующий проект двигателя Дуинова. И если вы будете активно следить за нами, то вы обязательно первыми узнаете про эти новые проекты.
और थोड़ा इतना भी कहूँगा कि ये आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मिस्टर दुइंगो का जो प्रोजेक्ट है। और मैं कहूँगा कि अगर आप ध्यान से हमारे साथ लगे रहेंगे, ध्यान से नई खबरें पढ़ते रहेंगे, तो आपको समय से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा नया प्रोजेक्ट आने वाला है और कब वो आपके सामने पेश होने वाला है। Так, ну что, вопросы закончились. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Можете спрашивать, писать в чат, голосом говорить, в общем-то, без проблем. तो सवाल सब खत्म हो गए। अगर आपके अभी कोई सवाल बाकी हैं तो आप चैट में लिखिए, या अगर आप चाहें तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपके पास क्वेश्चन गए थे उसको सही ढंग से बताने के लिए। हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम अपने जो पार्टनर हमारे साथ आए हुए हैं उनके पास चलते हैं। उनका कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो जिनको भी क्वेश्चन आस्क करना है वो अपना हैंड रेज कीजिए, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। और अपना आपको वीडियो ऑन रखना है ताकि आपको लोग जान पाए। सबसे पहले ये बी पांडे सर, आपका शायद मैंने क्वेश्चन जो आपने 2 पूछा था, लगता है कि आप लेट से आए थे। अगर उसके सिवा कोई और क्वेश्चन है तो अपने आप को वीडियो ऑन कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि डिविडेंड कब आएगा, तो जैसा पावेल फिलिपो सर ने आते ही बताया था कि 2023 में भी हम इसको कर सकते हैं। और जहां तक आपकी दूसरी क्वेश्चन थी वो थी कि क्या इंडिया में भी प्रोजेक्ट अपनी जो सोलर ग्रुप है वो दूसरी शुरू कर सकती है, यानी कि फैक्ट्री इसको बैठा सकता है। तो जब हम रसिया में गए थे तो मिस्टर दिमित्री ड्यूनो ने हमसे बात किया था और उन्होंने बताया था कि हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम इंडिया में ही खोलेंगे। तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे इस फंडिंग को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो हमारे लिए इंडिया के लिए भी प्रोजेक्ट को अपने लाएंगे। प्लीज रुचिर सर ट्रांसलेट कर दीजिए इसको। Тут спрашивали, задали 2 вопроса. Первый был касательно дивидендов, что когда пойдут уже дивиденды, на что Андрой сказал, что это будет вот сразу, как только финансирование закончится, и если все пойдет по плану, то будет все по плану. Второй вопрос был, когда будут ли открывать производство в Индии. И Анна Дрой говорит, что когда были все в Москве, разговаривали с Дмитрием Дуиновым, и он сказал, что если Индия будет показывать такой же интерес, будет такая же огромная поддержка, как сейчас, и она будет только дальше развиваться, то следующее как раз, как бы скажем, следующее производство как раз можно будет запланировать уже непосредственно в Индии. Андрой правильно все сказал, да. А если конкретизировать, то дивиденды первые планируются 2024 год, то есть сразу после начала деятельности предприятия. Вот. По поводу, значит, строительства предприятия в Индии тоже все верно, правильная информация. Более того, скажу, что в принципе технология «Славянка» планируется и развивать методом строительства различных предприятий в различных странах, чтобы эти предприятия производили именно двигатели, необходимые, ну, именно те двигатели, что необходимы конкретной стране. Вот, поэтому в Индии будет, соответственно, производиться те двигатели, что нужны Индии. Поскольку в Индии очень большая поддержка, то я уверен, что Индия вполне вероятно будет прям первой страной, да, где подобное предприятие будет построено. Более того, я уверен, что это будет не одно предприятие, их будет много, потому что Индия очень большая страна. हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि आनंद जी ने जो आपको अभी जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। डिविडेंड्स की बात की जाए तो जैसे ही 2023 में 24 में उससे पहले भी वो उस पर जैसे ही फाइनेंसिंग खत्म होगी उस पर डिपेंड करता है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि हम केवल हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोच रहे, हम हर देश के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हर देश की अपनी ही डिमांड होती है मोटर की। ज़रूरी नहीं है कि जो भारत में चाहिए वही दूसरे देश में भी उसकी डिमांड हो, हर जगह अपनी डिमांड है। और मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इतना ही बड़ा सपोर्ट रहा तो इंडिया में जाकर के एक प्लांट काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा देश है, तो उसमें कई प्लांट्स लगने चाहिए। आनंद जी। यस सर, तो मैं चलता हूँ सीधे अपने जो पार्टनर्स है बी पांडे सर, शायद ये रांची से है,
होप करते हैं। आप सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, उसके बाद चलेंगे हम गुप्ता सर के पास, उदय गुप्ता सर के पास, जो उनको लीडरशिप पे कुछ क्वेश्चन क्वेरी करना है। तो हम चलते हैं सीधा पांडे सर। सर आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ सर बोलिए सर। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बड़ी अच्छे से उन्होंने प्रबल जी ने रिप्लाई किया है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि लिस्टिंग का कब तक का प्लानिंग है, और ये लोग आज के मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग का वैल्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, माने लिस्टिंग कब तक होगा और लिस्टिंग वैल्यू कब तक क्या एक्सपेक्टेड है, इसके बारे में भी कुछ अभी रफ इंफॉर्मेशन, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे क्या, बेस्ड ऑन द प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो? बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर। जैसा कि कल के वेबिनार में जो एनुअल वेबिनार था, इस सब को डिस्कस हुआ था, आप उसको रेफर कर सकते हैं। फिर भी आपके क्वेश्चन को रुचि सर तक ये क्वेश्चन पहुंचाया जाए। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि सर जानना चाहते हैं कि जो लिस्टिंग प्राइस रहेगा वो कितना होगा और कब तक होने का चांस है। हम लोग की शेयर की वैल्यू क्या कैलकुलेट की जा रही है? यस सर, कि कितने में आएगा और कब तक ये मार्केट में आने का चांसेस है। Павел, следующий вопрос. Он говорит, что я вот вчерашнюю конференцию смотрел, и, может быть, все-таки какая-то предварительная информация у вас есть, а он хочет знать, что приблизительно на данный момент какая цена у акции, у одной акции, и приблизительно когда можно будет уже как бы выставлять на продажу. Вот что-то вроде этого, насколько я понял. Ну, я понял, да, о чем спросил. Вот еще раз, да, выставлять на продажу. Выставить на продажу можно будет либо на внутренней бирже, да, что будет сразу после завершения финансирования, там по срокам и всему прочему. Сегодня мы уже очень много говорили. Либо это уже при выходе компании на фондовый рынок. То есть по срокам тоже мы говорили, там, 25-26 год. Может быть, раньше, да, это негативные сроки. Соответственно, тогда можно будет продать. Если говорить про цену, то цену на фондовом рынке вот, это около $1. Что касается на внутренней бирже, то, я думаю, цена будет меньше, чем $1. То есть это было бы слишком прям, так сказать, амбициозно. Ну, тоже возможно, скажем так. Я думаю, что если цена на внутренней бирже будет даже там по 10, по 20, по 30 центов за $1, я думаю, что даже этот результат многих инвесторов устроит. Вот. Но на внутренней бирже пока что прям предсказать точную цену проблематично. तो अगर हम बात करेंगे कि अभी लिस्टिंग प्राइस क्या है, तो हमने तो यही कैलकुलेट किया है कि आईपीओ के दौरान हर एक शेयर कम से कम $1 का हो, लेकिन उसकी असली वैल्यू क्या होगी वो तो फिर तभी जाकर के पता चलेगा कि जब हमें एक्सचेंज की तरफ से इवैल्यूएशन मिलेगी कि वो उन्होंने हमें कितना क्या कंपनी को क्या वैल्यू दी है। इंटरनल एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही हम $1 का प्राइस नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो बहुत ही ऐसी बात हो जाएगी कि मतलब कि सपना पूरा होने वाली बात हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि अगर इंटरनल एक्सचेंज में 20 सेंट भी होगा, 30 सेंट भी होगा, तो फिर भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर जब ये बेचने की बात अगर होती है तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके पास 2 तरीके होंगे बेचने के। एक हो गया इंटरनल एक्सचेंज में बेचने का, और दूसरा हो गया कि जब कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो तब आप बेच सकेंगे। जी आनंद जी। तो आपके सर, उनका क्वेश्चन में एक चीज रह गया कि किस साल में वो मार्केट में जाने वाले हैं। जैसा कि उन्होंने बताया था 25 में 2025 में ये मार्केट में आने वाले हैं, तो उसका मैं आंसर दे दिया हूँ कल, क्योंकि मैंने अटेंड किया था। तो मैं चलता हूँ अभी सीधे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर उदय गुप्ता सर के पास, और उनसे जानते हैं कल उनकी क्वेरी, कल उन्होंने सुना है बहुत ध्यान से, और हमारे पास भी कुछ लीडरशिप पे क्वेश्चन है, उनको पहले सुनते हैं, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेलकम गुप्ता सर, आपको आज के वेबिनार में। जी सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, बता दूं? सर अगर वैसा प्रॉब्लम है जिसको आप फोरम पे
साझा कर सकते हैं, नहीं तो आप टीम के साथ बात कर सकते हो। आपका इशू है तो आप कैसे रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड है सर। एक्चुअल में कंपनी के साथ ही था, मेरा 2 आईडी था, समझे ना सर? तो हाँ बता सकते हैं, आईडी का प्रॉब्लम है सर पर्सनल, वो तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। हाँ, तो कंपनी से मेरा बात हुआ था मार्च में, मतलब पिछले 20 में। तो कंपनी मेल किया था कि ठीक है आपका 2 आईडी है तो एक आईडी में सारा शेयर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने बोला किसमें करना है बता दीजिए, मैं बता दिया था, लेकिन बाद में जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। हम वेट कर रहे हैं कि मेरा कब होगा। जी सर, यस सर। जानकारी था मैटर। ये इस साल मार्च में आपने बात हुई थी आपकी? जी, असल में 2 आईडी था तो दोनों वेरीफाई हो गया था, समझे ना? हाँ, मैं समझा आपकी बात। एक था $500 का, एक था $10,000 का, तो कंपनी बीच में दोनों बैन कर दिया था और मैसेज किया कि आप किसको चलाना चाहते हैं, जिसको चलाना चाहते हैं उसको चलाइए और जिसका बाकी का शेयर उस पर कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने कंपनी को लिखा था इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट नहीं हुआ और एक आईडी जो $10,000 का था वो खुला और 500 का बैन है। 500 वाले का क्या हुआ? आपकी आवाज कट रही है, सॉरी। 500 वाला अभी तक बैन है। कंपनी सपोर्ट बोली थी, सपोर्ट जो छोटा आईडी $500 का है उसका सारा शेयर आपको बड़े वाला आईडी में कन्वर्ट कर देंगे। मैं समझа आपकी बात. Паша, у него тут такой вопрос, технический вопрос. Он говорит, что у него 2 аккаунта. В марте он связывался с техническим отделом, вот, говорил на эту тему с ними, и у него один аккаунт на $10 000, второй на 500. Ему технический отдел сказал, что они переведут, они закроют, они совместят его оба аккаунта в один, и тот, который маленький, с $500 переведут на тот аккаунт, в котором $10 000. Вот. И он говорит, что до сих пор этого не произошло. Как бы второй аккаунт у него закрыт, но эти $500 в аккаунт, где 10 000, не перешли. Возможно, произошло какое-то недоразумение. Давайте его быстро исправим. Напишите мне, пожалуйста, ваш email, либо передайте его там через Android, либо через Бирди, чтобы они мне прислали. Я перешлю техническую поддержку, это сообщение, прошу, чтобы они быстрее все эти доли. आनंद जी, पावेल कह रहे हैं कि गुप्ता जी आप ऐसा कीजिए, आप अपनी ईमेल आईडी जो है, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है, दोनों अकाउंट की आप आनंद जी को दे दीजिए. आनंद जी आप पर्सनली पावेल की ईमेल में डाल दीजिएगा और फिर वो पावेल डायरेक्टली टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ खुद बात करके इस इश्यू को सॉल्व करते हैं. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. मैं सर से बात कर लूंगा, मेरी बात होते रहती है. और सर उदय सर, और कोई बात? जी सर, नहीं, और बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है. आप तक बढ़ सर, हम ये चाहते हैं कि रांची में धमाका हो. ठीक है सर. और आप जब भी आए मैं यहाँ तैयार हूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा रेडी है सोलर ग्रुप के लिए. हमारे और आपके आने से नहीं, हमें वहाँ पे लोगों को जागरूक करना है, वो करना है. आप तो हैं ही वहाँ पे. मेरे तरफ से रहेंगे. पावेल, जो उदय जी हैं हमारे रांची से, एक बहुत अच्छे लीडर हैं और इन्होंने शुरू में सबसे पहले इन्होंने जो इंडिया से एक बड़ा पैकेज बाय किया था. एक अच्छी लीडरशिप पर ये काम कर रहे हैं और मैं इनका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये हमारे बाकी लीडरों की तरह रांची में ये कमांड संभाले. Павел Бирди хотел, чтобы рассказать по поводу Уде Гупта, вот чей был вопрос. Он сказал, что он из индийского региона Рачи, и он там один из лидеров, он как раз вот инвестировал большую сумму за раз. Вот. И Бирди очень надеется, что со временем он станет как раз более крупным лидером своего региона и будет оттуда притягивать еще больше инвестиций. मुझे लग रहा है कि ये आईडी के कारण अभी तक काम नहीं कर रहे हैं, तो इनका जैसे ये मसला हल हो जाता है फिर इनको रांची एक ऐसी जगह है जहां पर हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं. और इस मीटिंग के बाद में उदय जी वहां पर कमांड संभालने की शायद जल्द से तैयारी कर देंगे सामने आकर. मेरा पर्सनल अभी भी $20,000 का है सर. फिर से बोलिए एक बार. सर का 20,000 का पैकेज है अभी, उन्होंने बताया.
Бир говорит, что, видимо, что именно вот из-за этих проблем, которые у него с аккаунтами, он как бы больше не, как бы, более усердно как бы сейчас не может работать. Вот. А Ананд говорит, что у него сейчас вот как раз вот его инвестиции, они не 10, а 20 тысяч долларов. Так что надо этот вопрос побыстрее бы решить, чтобы он мог уже дальше развиваться. Вообще без проблем, давайте быстро его решим. Нет, для того, чтобы решить проблему, просто нужен имейл, желательно вот от обоих аккаунтов, прям завтра. हाँ, तो आनंद जी जैसे उन्होंने पहले ही कहा था कि आप उनके दोनों रजिस्टर्ड अकाउंट्स के जो ईमेल्स जो हैं वो ले लीजिएगा और फिर आप पावेल को डायरेक्टली लिख दीजिए और पावेल डायरेक्टली टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करके फटाफट इसे सॉल्व कर दीजिए। ओके, थैंक यू सर। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछने के लिए चंद्रशेखर जी हैं, और आप लोग को मैं बता देना चाहूंगा कि एज ए रशियन दे आर वेरी पर्टिकुलर टू टाइम मैनेजमेंट। तो हम लोग 10 बजे इस वेबिनार को खत्म करेंगे। हमारे पास 20-18 मिनट और समय है, उसमें आप अपने क्वेश्चन को रखिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन हमारे पास आता नहीं है, जैसे जैसे वेबिनार आता है उस समय बढ़ते जाता है। चंद्रशेखर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर। वेलकम टू सर आवर वेबिनार। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर एक्चुअली मैं कभी मीटिंग अटेंड नहीं करता, पहली बार मैं मीटिंग कर रहा हूँ। मेरा ग्रुप में एक्चुअली 5,000 और 10,000 डॉलर वाला करीब करीब 40-50 आईडी है। मेरे को डिटेल पता नहीं था इस बारे में। आज मैं देखा हमारा जो एक्चुअली मेरे को जयदेव जी हमेशा लिंक भेजते रहते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला। आज टाइम मिला था, मैं अटेंड कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि मेरा 2-3 क्लाइंट डेथ हो गया। मेरा एक है नरेंद्र कुमार साहू और 2-3 क्लाइंट है, सब डेथ हो गया। इन लोगों को कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे? उसके लिए सर ये केस आया हुआ था अभी, कौशिक सर का जो दिल्ली से थे हमारे ग्रेट लीडर, उनका सेम केस आया था। तो उनके नॉमिनी को आप उनका डेथ सर्टिफिकेट्स, उनके ईमेल्स वगैरह आप मेरे को पर्सनल सर डिटेल्स बात कीजिए, मैं बाकी उसका सोल्यूशन है सर, नो प्रॉब्लम सर। जयदेव सर से मेरा नंबर ले लीजिएगा। एक्चुअली वेरीफाई नहीं हुआ अभी तक, इन लोगों का अभी कर सकते हैं क्या, चेंज कर सकते हैं? वेरीफाई हुआ नहीं। मुझे सबसे पहले सर उसका आपके जिसके नाम से है उनका मेरे को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद वेरीफाई करना है, क्या करना है हम बात करेंगे। जयदेव सर प्लीज सर आप इसको देखिएगा, बाकी हम मेरा नंबर देके। धन्यवाद सर और एक चीज है, मेरा नाम में 2 आईडी मैं खोल दिया था पहले, इसको एक आईडी को हो सकता है सर? सर अभी सेम प्रॉब्लम था, आप भी भेजिएगा, आपके प्रॉब्लम को भी आप जो रखना चाहते हैं उसको आप भेजिएगा। बाकी आपने सुना ही, उदय सर ने अपना बताया था प्रॉब्लम, सेम आपका है। जयदेव सर से कंसल्ट करके या मेरा नंबर सर दे दीजिएगा, और हम चलते हैं अभी सीधा जयदेव सर के पास और उनसे पूछते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते सर जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग तो 2-3 साल से ये कंपनी में काम कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो लोग पूछते हैं तुम्हारा गाड़ी कब आएगा, तुम्हारा मोटर वाड़ा कब जाएगा, उससे कंपटीशन मार्केट अभी उल्ला आ गया है। हम चाहते हैं कि हर शहर में कुछ कुछ लीडर होती है, उनको भी खरीदने के लिए वो चाहते हैं। लेकिन मैं मेल किया था विक्टर सर को, विक्टर सर बोले मेल दिए है कि एक नहीं 10 मिनिमम 10 या 100 ऑर्डर करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको जो विक्टर सर जो बाइक वगैरह जो ये करते हैं, तो हम लीडर लोग को पास कैसे वो खरीदने इजी खरीदना होगा, वो थोड़ा सॉल्यूशन बताइए सर। आपने ऐसा बताया कि उन्होंने क्वांटिटी 10 बता दिया है, तो हम मेरे तरफ से हम चाहते हैं 2-3 हम खरीदना चाहते हैं, बाकी करके ये तो इजी से आपने क्वांटिटी बता दिया, तो हमें आप प्राइस हम डिस्कस करते हैं और हम लेके मंगवा लेते हैं। ये कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन आप मेरे से बताते सर, ये तो अच्छी बात है, हम लोग घूमते हैं। नहीं, क्योंकि हम ओला वगैरह खरीद से ये बेटर रहेगा, क्योंकि हम कंपनी में काम करते हैं, फिर ओला खरीदेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। नहीं तो सर, मार्केटिंग भी अच्छा होगा ना। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो हमने देखा था दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में, इसका जो पिकअप है, इसका जो माइलेज है, इसका जो आप टॉर्क वगैरह सब चीज है, मतलब कितना जल्दी पिकअप करता है स्पीड को, ये सारी उससे बहुत अच्छा है। तो हमें सर यहाँ पे यूज करने में हमारा ही कंपनी का भलाई रहेगा। तो आपने किया, मुझे भी फॉरवर्ड कीजिए और हम लोग बात करते हैं कल इसके बारे में सर। और कोई क्वेश्चन? पर्सनल मीटिंग करके हम लोग 10 कम से कम अरेंज करके वो कैसे डिलीवर किया जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। रुचिर जी, पावल जी को भी बता दीजिए थोड़ा, उनको भी वो देख रहे हैं हमारी तरफ। बिल्कुल।
Да, Павел, давайте я вам расскажу. Первый там вопрос был, до этого вопрос человека, который задавал вопрос был касательно, опять же, что у него там 2 аккаунта как-то превратить все в одно, ему Ананд объяснил. И у него второй вопрос был, что пару-тройку инвесторов, которые через него пришли, они, к сожалению, скончались, вот, и как с этим быть? И Ананд ему сказал, что пусть он ему напишет на почту их email-адреса, и как бы он разберет этот вопрос. Вот. А вот сейчас вот второй человек, который был в эфире, он задал вопрос, что он говорит, что как бы он уже 2 года работает, принимает участие в инвестициях в Solar Group, и в районе у него в городе спрашивают, а когда будет сама эта машина, как бы там, когда мы увидим тебя на этой машине, вот саму технологию. Вот. И он говорит, что было бы неплохо, если, допустим, у каждого лидера, каждого региона была бы такая вот одна машина, чтобы он мог бы еще и показать эту машину. И он говорит, что он лично разговаривал, связывался с Виктором, вот, и Виктор ему сказал, что, к сожалению, продать одну единицу невозможно, там должна быть какая-то, минимальный заказ должен быть какой-то, и, как я понял, он сказал, должен быть минимальный заказ на 10 машин, на 10 единиц. На что Ананд сказал, что это как бы это отличная новость, почему мне об этом раньше не сказали, потому что мы сами хотим пару-тройку вот единиц купить для себя, чтобы людям показывать. И он говорит, что вот как бы там напишите тогда мне, что сколько единиц вас интересует, мы найдем еще как бы других людей, которые тоже хотят купить, и вот как бы минимальную сумму заказа, когда соберем, сделаем заказ у Виктора. Это был разговор между ними. Да, вы уточните, что значит, что еще есть Лобов, Андрей Лобов, и вот с ним как раз-таки можно более мелкие какие-то партии прорабатывать, потому что он занимается электрокомплектами, которые можно установить там в единичном экземпляре без проблем. Вот, например, вот электротук-тук, кстати, вот они сделали, да, может быть, конкретно вот подобные прям реализовать, да, для партнеров можно. Так что вот с Лобовым обязательно тоже стоит переговорить и пообщаться, узнать, что он может предложить. तो पायल जी कह रहे हैं कि आपने विक्टर के साथ बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि कल की कॉन्फ्रेंस में एक और बंदे को पेश किया गया था आपके सामने, मिस्टर लोबोव जो हैं, आप उनके साथ भी कांटेक्ट कीजिए। हो सकता है वहाँ पे 10 यूनिट नहीं, हो सकता है थोड़े मिनिमम ऑर्डर जो होगा वो थोड़े कम यूनिट का होगा, तो आप उनके साथ भी डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए और इस बात पे चर्चा कीजिए, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन पाइए। थैंक यू सर। और सर हम चलते हैं अपने ग्रेट लीडर मिस्टर श्रीधर राव सर के पास। और सर राव सर, आपके पास ओनली 5 मिनट्स समय है, क्योंकि हमारे पास 11 मिनट बाकी है। आपका स्वागत है आज के वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ पावल जी से। एक क्लैरिटी चाहिए, फाइनेंशियल जो बढ़ाया है, जो 40 मिलियन से 60 मिलियन बोल रहे थे कल, उसका बारे में थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। और नया ऑफर कुछ, मतलब प्रमोशन में कुछ नया ऑफर वगैरह, पार्टनर रेस, कुछ अनाउंसमेंट अभी कुछ किया नहीं है, कुछ आने वाला है क्या? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, काम करना चाहिए तो कुछ ना कुछ ऑफर होना चाहिए। और जितना भी ये 5% ये जो चलता है ये अलग है, वो अलग से कुछ लीडर की हिसाब से कुछ सोचेंगे तो कंपनी बहुत अच्छा आगे जा सकता है। Так, у него вопрос следующий. Он говорит, что люди спрашивают, какие еще будут промо-акции касательно того, что вчера анонсировали, что вот при регистрации получаете 5% бонус. Он говорит, это все прекрасно, вот, но для лидеров надо сделать что-то отдельное, то, что будет притягивать их интерес еще сильнее. Вот, это как бы первая часть его вопроса. Вторая часть, то, что он вчера услышал, что сумму инвестиций подняли с 40 миллионов до 60, вот тут он хотел бы более как бы подробно понять эту ситуацию, по каким причинам это произошло. Так, смотрите, первое, что касается акций для лидеров, то в начале следующего года, 22-го, планируется ряд промоушенов, которые будут направлены как раз-таки на партнеров, и они позволят партнерам зарабатывать больше.
तो आपके सवाल का एक सवाल का जवाब जो आपने कहा था कि कुछ ऑफर होना चाहिए, तो लीडर लोगों के लिए, पार्टनर लोगों के लिए अगले साल कुछ प्रोमोस ऐसे तैयार हो रखे हैं, किए हैं, जो स्पेशली लीडर्स के लिए हैं और पार्टनर्स के लिए हैं, कि आप लोग और ज़्यादा उसके ज़रिए कमा सकें. वो आपको समय के साथ खबर मिलेगी. С другой стороны, все вот эти акции для инвесторов, они же и партнерам помогают. Это тоже нужно понимать, потому что когда есть акция, вам как партнеру легче продать инвестицию. Более того, вы можете использовать акцию, чтобы убедить стать инвестором того человека, который до этого, возможно, не решался. Акция – это хорошая возможность увеличить собственные продажи. Поэтому я считаю, что подобные акции, они помогают и партнерам больше зарабатывать. और जैसे कि आपने कहा कि ये 5% बोनस वाला जो प्रोमो जो था, तो मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा कि इस ऐसे प्रोमोस के ज़रिए आपको आपकी भी बहुत मदद होती है, क्योंकि मान लीजिए हो सकता है आपने किसी से बात की होगी और वो बंदा तैयार नहीं हो रहा था इन्वेस्ट करने के लिए, तो जब आप उनसे कहेंगे कि आपके लिए ऐसा भी एक प्रोमो निकला हुआ है कि रजिस्टर होंगे, आपको 5% बोनस मिलेगा, तो हो सकता है ये वो प्रोमो है जिसकी वजह से वो आपके साथ जुड़ जाएगा, तो आपका भी इस बात में फायदा है. तो कोई सा भी जो भी प्रोमो हो, आप लोगों का फायदा उसमें भी है. जी. मेरा और एक बात है, ये जो फाइनेंशियल जो बढ़ाया है ना, मतलब अभी 40 मिलियन से 60 मिलियन, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए. अभी अपना लीडर्स के लिए. अभी इसी का वो जवाब देंगे अगला. जी. Да, Павел, касательно вот 40, то, что подняли до 60, он хотел бы там чуть поподробнее об этом услышать. Да, смотрите, в принципе, вчера Дмитрий Александрович Дуюнов очень подробно рассказал, в чем причина. Давайте я еще раз основные моменты проговорю. देखिए, कल की कॉन्फ्रेंस में मिस्टर दुयुनोव ने काफ़ी डिटेल में बताया था, आपको कारण दिया था कि क्यों 40 से 60 तक बढ़ाया गया है, लेकिन अभी मैं फिर से कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पॉइंट वाइज आपको जवाब देने की. Да, Павел. Нужно понимать, что наш проект, он не находится в вакууме, да? Наш проект находится в реальном мире. Поэтому те проблемы или те ситуации, которые возникают в реальном мире, они напрямую влияют на проект. Когда-то в лучшую сторону, когда-то в худшую сторону. И нужно понимать, что, в частности, стоимость проекта рассчитывалась еще в 2016 году перед запуском финансирования в 2017 году. तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि हर कोई एक जो प्रोजेक्ट जो होता है वो किसी एक वैक्यूम में तो पैदा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता. वो हम सब एक वर्ल्ड इकोनॉमी में रहते हैं, तो जो कुछ भी वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भी कोई बदलाव आ रहा है वो प्रोजेक्ट पे भी असर डालता है. तो ये जो 40 मिलियन का जो नंबर था वो तब गिना गया था, ये 2016 की बात है, जब फाइनेंसिंग शुरू भी नहीं की थी. और इन सालों में आप खुद ही देख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना फर्क आया है. तो इसी इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए इसीलिए रकम भी बढ़ गई है. Да. И когда просчитывался проект, конечно, закладывались возможные изменения цены, да, например, на строительные материалы, но никто не мог там предположить в тот момент, что мы в момент реализации проекта войдем в так называемый сырьевой суперцикл. Что такое сырьевой суперцикл? Если вы посмотрите сейчас на стоимость сырья, то есть это стоимость всех металлов, стоимость древесины, стоимость бетона, стоимость арматуры, вы увидите, что по всему миру за 2021 год цена на эти позиции выросла в 2-3 раза. То есть не на 10, не на 20%, а в несколько раз. Это просто факт, вы можете открыть графики, посмотреть, все это в интернете, все эти цены есть. तो अब दूसरा पॉइंट ये होगा कि जब हमने 2016 में जब कैलकुलेशंस किए थे और 40 मिलियन का जो फिगर जो था, हाँ, उसमें भी हमने आने वाले इन्फ्लेशन को डाला था, उसको भी हमने कैलकुलेट किया था. लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि पिछले साल के दौरान जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, कुछ भी हो, वो रेती हो, सीमेंट हो, क्या कहते हैं, लोहा हो, जो भी हो,
इन सब चीज़ों का दाम 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। आप गूगल में जा करके, आप कोई सी भी वेबसाइट में जा करके जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आप देख सकते हैं कि कैसे ये दाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, रॉ मटेरियल का दाम कैसे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ये एक और कारण है क्यों 40 से 60 हुआ है। और भी बढ़ सकता है क्या? नहीं, और भी बढ़ सकता है क्या? बाद में अभी 60 हुआ, फिर बाद में भी बढ़ सकता है क्या? वो भी पूछ लीजिए एक बार, कंफर्म करने के लिए. Павел говорит, что, как вы предполагаете, цена может еще расти, как бы сумма? Давайте, сейчас я договорю. Давайте, я, короче, не договорю, да. Плюс к тому, что по всему миру выросли цены на сырье, еще вы все видели, что никто не мог предсказать, что появится такая вещь, как коронавирус. И коронавирус действительно сейчас внес различные экономические трудности вообще во весь мир. Да? Цены растут, экономическая ситуация практически везде ухудшается. Ну и, конечно, это вносит определенные корректировки в стоимость проекта. Это те самые риски, про которые мы говорили, да, что может произойти все, что угодно. В нашем случае действительно произошло удорожание итоговой стоимости проекта. Это не очень приятно, но это не смертельно. В общем-то, и это мы с вами обязательно решим эту ситуацию, просто дофинансировав проект. तो आपके सवाल का जवाब आगे जो कह रहे हैं कि फिर ये रॉ मटेरियल का दाम जो बढ़ा है, और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि हम कल के कॉन्फ्रेंस में हमने बात की थी रिस्क के बारे में कि कौन से रिस्क हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, उनको पहले से सोच करके उनका हल सोच करके रखना, तैयार रहना। लेकिन पेंडेमिक जैसी चीज के बारे में तो कोई भी नहीं सोच सकता था। तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि पेंडेमिक की वजह से लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स कितनी आ गई है, उसके वजह से भी कितना फर्क पड़ा है पूरी दुनिया भर में। तो इसीलिए ये सब कुछ कुल मिलाकर के ये सब बातें जो हैं, इसकी वजह से हमारी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये अच्छी खबर नहीं है, इसमें कोई मज़ेदार बात नहीं है, लेकिन ये दी एंड भी नहीं है हमारे प्रोजेक्ट का। ये बातें चलती रहती है। और आपका जो दूसरा जो आगे जो था कि और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसका जवाब वो अभी देंगे। और एक पॉइंट है सर, सर को बता दीजिए, अभी जितना भी स्टॉक अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर दे रहे हैं, ज्यादा अभी तक कितना स्टॉक बाहर गया है, मतलब कितना लोगों को दिया है, वो अलग बात है। फिर भी अभी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा रहे हैं, फिर स्टॉक ज्यादा दे रहे हैं, फिर आने वाला फ्यूचर में इतना ज्यादा स्टॉक देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आने वाला उसका रेट वगैरह गिरना, अभी कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ कंडीशन में ज्यादा क्वांटिटी दे दिया, फिर बाद में मार्केट में क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो डिमांड कम हो गया, तो फिर उसका वैल्यू कम हो जाएगा ना, रेट कम हो जाएगा ना, वैल्यू नहीं रह सकता है ना, ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में होगा तो। समझ गए मेरा बात? हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। सप्लाई एंड डिमांड जो होता है मैं समझ गया। स्टॉक के ऊपर. Он здесь как бы хочет еще как бы продолжение касательно, что будет ли общая сумма расти, и его опасения касаются того, что вот выросла сумма, вы увеличиваете количество долей. Вот, не скажется ли это негативно на себестоимости одной доли? Как бы скажем, если больше инвесторов, больше долей, то само по себе получается, что цена на одну долю будет падать. Допустим, скажем, что если было бы там всего лишь 100, а когда на рынке там 1000. Вот этот вопрос его еще беспокоит. Да, я понял. Давай, да, я прошу последовательно вот на все, что он сказал, на все сейчас ответим. Так, в общем-то, еще раз, да, мы сказали там про то, что выросла цена, то, что вырос, значит, коронавирус, выросло стоимость строительных материалов. Да, вот продолжая эту тему, все равно хотелось бы, потому что это важно. Вот, например, я сейчас как раз пока слушал тоже вопрос, посмотрел, насколько вот алюминий вырос. Вот алюминий, например, вырос в 3 раза, как некий пример.
तो हाँ, मैं आपकी बात समझ गया कि आपने जो अभी जो आगे जो सवाल किया है, ये डिमांड एंड सप्लाई की बात जो बात कर रहे हैं उसको लेकर के देखिए, जब तक अभी आप जब सवाल अपना पूछ रहे थे तो मैंने अभी फट से जाकर के थोड़ा इंटरनेट में देखा ऐसे ही कि एल्यूमिनियम का दाम कितना बढ़ा है। तो मैंने अभी ये देखा कि एल्यूमिनियम जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। Да, Павел. Если вот отвечать дальше, да, на вопрос, там, первое, не увеличится ли сумма дальше? На данный момент мы все практически уверены, что сумма увеличиваться не будет дальше. Почему? Во-первых, нет сейчас оснований полагать, что цены на сырье продолжат расти, потому что цены на все сырье сейчас находятся на исторических максимумах, и сейчас по всем оценкам они либо останутся в той же цене, либо начнется снижение. Это во-первых. Во-вторых, к счастью, мы уже закупили большинство необходимых строительных материалов, поэтому даже если там цены на алюминий, на древесину и так далее продолжат расти, нас это уже существенно не коснется. तो दाम और आगे बढ़ सकता है, क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग की जो फाइनल जो सम टोटल सम जो है वो और बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता। तो इसके बारे में ये कहूँगा कि अभी हमारी इवैल्यूएशन के हिसाब से अब और नहीं बढ़ना चाहिए, और इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि रॉ मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जितना दाम बढ़ सकता था वो अभी मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, वो हिस्टोरिकल एक मैक्सिमम है। तो इससे और जो कारण जो थे जिनकी वजह से वो इतना महंगा हुआ है, अब और कोई कारण हमें दिखाई नहीं देता। मतलब कि एक पेंडेमिक तो हो गया, अब दूसरा तो हो नहीं सकता एकाएक, मतलब कि एक के बाद दूसरा हो नहीं सकता। जो भी बाकी इकोनॉमिक फैक्टर्स थे वो भी हो चुके हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा ये है कि हमने ऑलरेडी ज्यादातर जो हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए था कंस्ट्रक्शन के लिए, हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं। तो कल को जाकर के मान लीजिए कि अगर फिर से दाम बढ़ता भी है, हम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से ये सब सामान खरीद करके रखे हुए हैं। Да, Павел. Да, но в любом случае, конечно, нужно понимать, что происходить может все, что угодно. В любом случае, что нам здесь понимать? Что те активы, которые мы создаем, они в любом случае будут перекрывать и 40, и 60 миллионов долларов, которые в проект на данный момент привлекаются. Но тут как бы вот вопрос, да, что долей будет продано больше, и значит, что стоимость одной доли как бы размывается и в потенциале может меньше. Давайте вот я на это отвечу, почему так не произойдет. और जो आपने अभी वो पूछा था कि आपका कीमत के दाम टोटल सम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मैं आपको फिर एक बात ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो बना रही है, खड़ा कर रही है, जो एक्टिव्स जो बना रही है, जैसे ही मिस्टर दुइनोव ने कल बताया था कि मान लीजिए कि अगर बात आती है, कुछ हो जाता है, बहुत ही मतलब कि वर्स्ट सिनारियो होता है, तो अगर हम उस बिल्डिंग को बेचेंगे भी, और ये एक हाईटेक बिल्डिंग है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको भी बेचेंगे भी, तो जो 40 मिलियन जो है, 60 मिलियन जो है जो खर्चा हो रखा है, वो तो आराम से आ ही जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा महंगे में बिकेगा। तो ये हो गया। अब जो आप कह रहे थे कि डिमांड एंड सप्लाई की जो बात जो आपने छेड़ी थी, उसका मैं अभी आपको आगे जवाब देता हूँ। Да, Павел. Тут самый главный вопрос не в том, какое количество долей будет, а в том, сможем ли мы наполнить ценностью то количество долей, которое у нас в итоге получится. То есть сможем ли мы создать такое большое количество активов, чтобы в итоге оправдать вот эту увеличенную сумму инвестирования. तो ये जो शेयर्स की आप जो बात कर रहे थे कि तो इसमें सबसे दिलचस्पी की बात ये नहीं है कि कितने शेयर्स होंगे, हमें ये ज़्यादा इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना है कि उन शेयर्स की वैल्यू जो है, उन्हें कितनी वैल्यू हम दे सकेंगे, और वो सबसे पहले डिपेंड करेगी कि कौन सा कितना अच्छा मॉडर्न हाईटेक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं। जो अभी हमने बात की थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, पेटेंट्स को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के। ये да, Павел. Дмитрий Александрович Дуйнов сказал, что
поскольку сумма увеличена привлекаемых инвестиций, на баланс компании Sovelmash планируется перевести больше активов, больше ценностей для того, чтобы оправдать вот эту вот итоговую сумму привлеченных инвестиций. То есть, да, денег собрано будет больше, но и активов, которые будут переведены на баланс компании, также будет больше, о чем сказал Дмитрий Александрович Дуйнов. Это будут нематериальные активы в виде патентов, научных работ, различной документации, которая будет переведена на, в общем-то, баланс компании Sovelmash. Для того, чтобы это будет сделано в большем количестве, для того, чтобы большая сумма означала и большую оценку компании. और आपको याद होगा कि कल की कॉन्फ्रेंस में मिस्टर दुइनोव ने आप लोगों को बताया था कि शुरुआत में जब 40 मिलियन का फिगर जो था तो उसमें से कितना Sovelmash कंपनी की तरफ जाएगा पैसा उन्होंने बताया था। बाद में उन्होंने आपको बताया था कि 40 से अब 60 हो गया है, तो जो पैसा Sovelmash कंपनी की तरफ जाएगा वो भी बढ़ गया है, वो भी अब हो गया 30 हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को भी ज्यादा पैसा दिया जाएगा और कंपनी उस पैसे को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपनी ज्यादा क्रिएट कर सकेगी। तो ये एक तरफ से केवल शेयर्स की बात नहीं है, एक ये हो गई आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू भी बढ़ गई है अपने आप में ही। Да, Павел. Да, поэтому здесь не такая ситуация, когда денег собирается больше, а инвесторы получают то же самое. Нет, денег собирается больше, но и инвесторы получают компанию, которая владеет большим количеством активов. Это оправдывает эту увеличившуюся сумму, и Дмитрий Дуйнов сказал, что готов пойти на это и готов передать инвесторам еще больше вот этих вот нематериальных активов. तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमने पैसा इकट्ठा कर दिया और बाद में उसे पूरी तरीके से केवल इन्वेस्टर लोगों में शेयर के जरिए बांट दिया। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि उसमें से बहुत बड़ी रकम कंपनी की तरफ भी जा रही है। उस पैसे को लेकर के कंपनी एक बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मैंने आपसे अभी बात की थी वो बना रही है। और मिस्टर दुइनोव भी इस बात को मान चुके हैं कि करंट सिचुएशन को देख करके कि हाँ, उन्हें भी कंपनी की ज्यादा क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी हो, ज्यादा इन्वेस्टर लोगों की तरफ उसे उसके साथ बांटना होगा। तो ये आपका एक बैलेंस है इसमें। एक मतलब पॉइंट रखना है मेरा तरफ से, और मेरा डाउनलाइन जो भी है, बहुत लोग क्वेश्चन मारते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं। इतना अभी 60 मिलियन मान लीजिए, 60 मिलियन टारगेट रखा है, फिर ये टारगेट एक पूरी करने के लिए डिजिटल कुछ वेबसाइट में कुछ देगा तो थोड़ा अच्छा, लोगों को एक अच्छा विश्वास आ जाएगा ना। मतलब इतना हुआ है और इतना बाकी है, और डिजिटल बोर्ड थोड़ा ऐड करेगा तो थोड़ा अच्छा होगा सबके लिए, और मेरा तरफ से भी और सबके कंपनी को भी थोड़ा अच्छा फायदा होगा। जल्दी इन्वेस्टमेंट भी जल्दी पूरी हो जाएगा, लोग जल्दी इन्वेस्टमेंट भी करेगा। इतना क्वांटिटी में कम हो रहा है, जल्दी काम करना है। अब सर पॉल जी को बोल दीजिए। На самом деле, Павел, вот это вот то, что сейчас он сказал, это как бы не вопрос, больше как бы, сейчас мне слово вылетело, совет. Вот, он говорит, что как бы почему бы не создать какое-нибудь цифровое табло на сайте компании, где каждый инвестор будет видеть, что нам надо достичь такую-то сумму, а такая-то сумма достигнута. И он говорит, что это будет огромным плюсом. Он говорит, что просто очень много людей ему задают этот вопрос, что а какая уже сумма собрана. Вот. И когда они визуально будут видеть, это как бы внушает доверие. И это подтолкнет людей инвестировать. Это его мнение. Вот. Можно ли такое табло сделать? На самом деле я согласен. То есть это действительно многие просят. И я думаю, что в скором времени мы сможем это реализовать. Вот. Это хорошая идея. Подумаем, как ее сделать лучше. राव जी, पावेल कह रहे हैं कि आप पहले बंदे नहीं हैं जिन्होंने इस चीज के बारे में बात की है। अभी वो आपके साथ पूरी तरीके वो कह रहे कि पूरी तरीके से आपके साथ एग्री करते हैं कि बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अगर जब लोगों को दिखेगा कि इतना इकट्ठा करना है, इतना इकट्ठा हो चुका है, वो देख सकेंगे कि कितनी जल्दी काम चल रहा है,
तो उन्हें फिर ज्यादा विश्वास होगा। तो ये बात पहले भी वो सुन चुके हैं और इसको ध्यान में ले चुके हैं और इसके ऊपर भी कंपनी के अंदर चर्चा शुरू हो चुकी है। तो जैसे ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा आपको बताया जाएगा। आनंद जी, उनकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अभी तक 60 मिलियन तक लेके गया है फिगर को, जो यही फिगर को कंफर्म करके टारगेट का जो डैशबोर्ड में आ जाएगा ना, एक डिजिटल बोर्ड लेके आएगा तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा मेरा तरफ से। जो मेरा ये अपना इंडिया के लिए भी बहुत आसान होगा और वर्ल्ड के लिए भी थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा फायदा होगा तो तभी जल्दी कंप्लीट होगा। इसीलिए मेरा तरफ से वो रिक्वेस्ट है, ज्यादा मेरा बात मानेगा तो अच्छी बात, बहुत बड़ी काम हो जाएगा इंडिया के लिए, लीडर को एक डिजिटल में दिख जाएगा। हाँ, मैंने आपकी बात बता दी, पायल जी तक पहुंचा दी है। तो वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल आपके साथ एग्री करते हैं कि मतलब कि अच्छा आइडिया है। आप पहले भी कुछ लोगों ने ये सजेशन दिया था कि अगर ऐसा होगा कि अगर दिखाई देगा लोगों को कि ये हमारा गोल है। मैं ही बोला हूँ सर, मैं ही बोला हूँ फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम में भी मैं ही बोला हूँ, लास्ट टाइम में भी मैं ही बोला हूँ, ये बात को लेके आया है, अभी भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात। अच्छा, बता दीजिए। Павел, он говорит, что в прошлый раз, когда он тоже принимал участие на вебинаре, он как раз вот эту же идею предлагал. Вот, и сейчас он второй раз это предлагает, потому что он действительно думает, что это как бы очень хорошая идея. И еще раз он как бы хочет надавить на тот момент, что очень многие люди, с которыми он общается, они как раз ему задают этот вопрос, что вот, ну ладно, как бы 60 это как бы финальная сумма, а сколько уже собрано? Как бы они хотят что-то, какое-то подтверждение получить со стороны самой компании, официальное, желательно как раз вот цифровое табло на официальном сайте. Я понял, да. Ну, кстати говоря, по собранной сумме мы на трансляции об этом говорили, что собрано чуть более 40 миллионов долларов. Поэтому, в принципе, эти цифры мы объявляем устно, да, мы это не скрываем. Вопрос, что да, как-то это отобразить визуально, ну, говорю еще раз, подумаем над этим. हाँ, वैसे तो पायल जी कह रहे, तो वैसे तो हम लोग हरदम न्यूज़ में, खबर में अपडेट देते रहते हैं। जैसे कि कल हमने बता दिया था कि 60 से 40 पे ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि एक विजुअल अगर ऐसा डिजिटल एक वो बना दिया जाएगा, तो ये आइडिया आपका अच्छा है, तो आपका सजेशन अच्छा है। तो इसको लेकर के वो अभी और आगे बात बढ़ाएंगे कंपनी में, और जैसे ही कोई खबर होगी आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आनंद जी, आनंद जी। हाँ सर, मेरे पास टाइम अभी हमारे पास थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेकिन हमारे पास जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। और हम ये चाहेंगे, सबसे बड़ी ये है कि हम लोग का जो इस इंडिया से एक्टिव लीडर है उनके साथ एक अलग से मीटिंग रख के और हमारी बातों को कंपनी तक पहुंचाया जाए। Павел, он говорит, что есть еще пару-тройку вопросов от лидеров индийского региона. Вот, есть вот как бы такое пожелание, чтобы отдельно организовать вебинар именно вот для лидеров своих регионов, чтобы можно было более подробно, детально кое-какие моменты проработать. Так, да, мы, кстати говоря, тоже в команде обсуждали такую возможность, да, вот именно собраться с лидерами. Давайте продумаем, давайте вместе подумаем, как сделать подобную встречу полезной. Я только за. हाँ रोजी, आनंद जी, हमने भी अपनी तरफ से हम लोग इस बात पे हमने कुछ चर्चा की थी कुछ समय पहले ही कि इंडियन रीजन, जैसे कि आज हमने बात की थी कि इंडिया नंबर 1 पे है उससे, तो हमने भी ये सोचा था कि अगर हम अलग से एक वेबिनार बनाएंगे जहाँ पे कि लीडर लोग इकट्ठा होंगे और कुछ ऐसे सवाल जवाब हैं, जैसे कि अभी सजेशन दिया गया कि वेबसाइट पे दिखाई दे कि कितना इकट्ठा हो गया है, कितना और बाकी है, ये सब बातें की जा सकती हैं। तो आप भी इस बात को डिस्कस कीजिए और जैसे ही आपके पास कोई एक प्लान होगा मुझे बताइएगा।
ओके, थैंक यू सर। जो दूसरा क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने जो पैकेज लिया है सर, उसमें क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट में पैकेज ले रहे हैं उनको मिला है 5% एक्स्ट्रा शेयर। सपोज दैट जिसने $500 का पैकेज लिया है, अगर इंस्टॉलमेंट में लेता है तो उसको 69,500 है प्लस 5% है। बट जो वन टाइम लिया है उसको ओनली 72,000 मिला है, तो उसको भी 5% 72,000 का मिलना चाहिए। एक मिनट, जिन लोगों ने किस्तों में लिया समझ गए मैंने? 5% मिल रहा है, हाँ, उनको 5% दे रहे हैं। जो लोगों ने वन टाइम पेमेंट किया कंपनी को, उनको नहीं मिल रहा है। Ага, समझा. Так, Павел, тут такой вопрос, что те люди, которые зарегистрировались, получили бонус 5%, а те люди, которые проинвестировали какую-то сумму и выплачивают по частям, они получили 5%, но те люди, которые после регистрации... रुचिर सर, आपकी आवाज नहीं जा पा रही। Павел, вы меня слышите? Да. Павел Каарин, или вас? Так, я начну заново. Вот те люди, которые воспользовались вот этим промоушеном 5%, купили какой-то инвестиционный пакет на какую-то сумму, ну, и выплачивают по частям, они получили 5%. Те люди, которые за раз заплатили за этот пакет, почему-то не получили 5%. Понял. Должны были получить. Если, ну, давайте так сделаем. Я напишу сейчас там в IT-отдел, чтобы проверили дополнительно. Возможно, какой-то баг появился. Нужно тогда будет дополнительно разбираться, у кого конкретно это не, у кого конкретно так произошло. В общем, другими словами, пишите в техническую поддержку, этим людям должны начислить бонус, а я дополнительно напишу в IT-отдел, чтобы они это починили. रोजी, बड़ी अजीब बात है, सब लोगों को 5% मिलना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ये कोई टेक्निकल बग होगा। आप उन लोगों से कहिए कि वो अपनी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट में ये सवाल डाल दें, ये कंप्लेंट डाल दें कि उन्हें 5% नहीं मिला है, और मैं भी अपनी तरफ से अभी ईमेल डाल देता हूँ टेक्निकल डिपार्टमेंट को कि ये वाली जो प्रॉब्लम जो है प्रायोरिटी में सॉल्व की जाए। और सर दूसरी बात यह है, बहुत सारे लोगों का टॉप अप करने अपग्रेड करने के लिए दिया गया है मेल आईडी, और उनका अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मेरा पैकेज 5,000 का था, मैंने 7,500 का अपग्रेडेशन के लिए रिक्वेस्ट डाला है, लेकिन 4 to 5 days हो गया, अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है। Так, следующая проблема возникает, видимо, тоже техническая, что люди, которые хотели повысить свой инвестиционный пакет, допустим, у кого-то был на 5 000, он хотел повысить до 7,5, вот уже как бы 4-5 дней прошло, как они уже написали, написали письмо в технический отдел, но почему-то до сих пор этого не произошло, апгрейда не произошло. Да, я понял. Смотрите, дело в том, что это не баг, дело в том, что сейчас это делается в ручном режиме, и заявок очень и очень много. Поэтому просто не успевают моментально все обрабатывать, но обязательно сделают. Вот. Поэтому не переживайте, ну, если там уж пройдет какое-то большое еще время и ничего не произойдет, пишите в техническую поддержку, там вашу проблему решат. Но еще раз, все заявки должны обработать со временем. तो ये वाली जो प्रॉब्लम जो है, ये कोई टेक्निकल बग नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि अभी ये प्रोसेस जो है वो मैन्युअली किया जा रहा है, और बहुत सारी अभी रिक्वेस्ट हैं, तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग गई है एक तरह से अगर कहा जाए, तो धीरे धीरे करके आप तक भी बारी पहुँचेगी। मान लीजिए कि अगर कुछ ज़्यादा ही समय गुजर जाता है और आपका अपग्रेड नहीं होता, तो आप फिर से एक बार टेक्निकल डिपार्टमेंट में लिख दीजिएगा कि आपने अप्लाई किया था और अभी तक हुआ नहीं। ओके, थैंक यू सर। और भी हमारी बहुत सारी तीखी क्वेश्चंस है जो लीडरशिप पे है, और उसके लिए कम से कम मेरे पास 1 घंटा समय चाहिए। तो मैं अवेल करता हूं कंपनी के साथ, जितने भी हमारे इंडिया के लीडर्स है उसको नेक्स्ट वीक में एक रूबरू होने का मौका दें, जहां पे हम लोग सब लोग मिलके आपस की बातें को कर सके। और हम चलते हैं अभी सीधा, इसको ट्रांसलेट कर दीजिए सर पहले। Павел, он говорит, что у него еще там очень много вопросов, ему еще понадобится час, чтобы на это все дело ответить. К вам просьба, что если можно будет уже на следующей неделе как бы организовать вот такую вот встречу с лидерами Индии.
Вот. Смотрите, я записал вот по поводу встречи. Завтра мы это обсудим, и тогда, я думаю, там сообщим, может, Павел Шацкий напишет, или я тогда скажу. Ну, в общем, решим. Я понял, что нужно это сделать. हाँ आनंद जी, मैंने नोट कर लिया है आपकी रिक्वेस्ट जो है कि अगले हफ्ते अगर हो सके हम कुछ ऐसे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करें लीडर लोगों के लिए। मैं कल ही डिस्कस करूंगा पावेल शास्की के साथ भी, और फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। और सर हम और भी सर का 5 मिनट्स लेना चाहेंगे। 2 मिनट मैं दिनेश सर से वो कुछ करना चाहते हैं। प्लीज सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए सर। आप अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। कहाँ चले गए? लगता है वो शायद किसी, हम अशोक सर से चलते हैं। सर प्लीज अशोक सर, आपसे रिक्वेस्ट है, विदिन 5 मिनट्स योर डिस्कशन विल बी क्लोज। थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, अभी वो गेटवे को लेके थोड़ा कब तक सॉल्व हो जाएगा सर? इसका कोई टाइमिंग बता पाएगा सर? कि बहुत इश्यू आ रहा है, क्रिप्टो और कोई यूज कर नहीं पा रहा है मेरी टीम में, या और भी कई लीडरों की प्रॉब्लम है, तो फंड एंड वक्त पे मिल नहीं पा रहा है, और अभी टेथर है उसकी रेट बहुत 80+ है, तो थोड़ा फंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो गेटवे को लेकर थोड़ा सर जितना जल्दी हो सके तो हम इन्वेस्ट को और इंक्रीज कर पाएंगे सर। तो गेटवे मोस्ट प्रायोरिटी सर, थोड़ा काम थोड़ा हम बताएं कब तक हो सकता है, इसकी कोई फाइनल रिपोर्ट है क्या? थैंक यू सर। आनंद जी आप फिर से बोले, क्योंकि उनकी आवाज बहुत कम आ रही थी मेरी मुझ तक। सर अशोक सर का क्वेश्चन ये है कि जैसे कंपनी को गेटवे जो लेके आना है जल्दी से लेके आए, बिकॉज यहाँ इन्वेस्टमेंट उसके कारण भी थोड़ा सा धीमे पड़ा है ड्यू टू इंडिया में जो बैन का जो चल रहा है ना किस्सा, उससे क्या है कि जो रेट है बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हमें वहां खरीदने में भी तकलीफ हो रहा है क्रिप्टो से। तो हमारे लिए जो गेटवे है जैसे फोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग, ये तीनों गेटवे जल्दी से जल्दी लाया जाए। ऑलरेडी 6 महीना बीत चुका है जब से ये बंद हुआ है, और उसके लिए हम लोग परेशान हैं, इंडियन лидерс. Так, Паша, следующий вопрос касательно платежных систем. Он говорит, что вот из-за всей вот этой вот неразберихи с криптовалютой постоянно меняется как бы цена на эту криптовалюту, и они хотят, чтобы побыстрее вы проработали вот эти технические моменты касательно вот всех вот этих вот платежных систем, которые работают в Индии. Там PhonePe есть, Google Pay есть, Paytm. Если можно побыстрее как бы это все дело внедрить, потому что из-за этого страдает финансирование. Люди жалуются. Да, Бирди через Диму Максименко передал список платежных систем, которые важны для Индии, и мы сейчас вот плотно общаемся по поводу того, чтобы их подключить. Поэтому мы про это помним, мы над этим работаем, так что я надеюсь, что скоро эти платежные системы у нас появятся. हाँ, तो बिरदी जी ने एक लिस्ट बनाई थी, इंडिया में जितने भी पेमेंट सॉल्यूशंस है, गेटवेज हैं, उनका पूरा एक लिस्ट दी थी, और ये कंपनी के पास ऑलरेडी ये लिस्ट है। हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है वो उसके ऊपर काम कर रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द हम इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। कब एग्जैक्टली ये अभी हो सकता है अभी मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आज के वेबिनार को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास अभी हैं, ड्यू टू सर समय बहुत ज्यादा हो चुका है, सर भी 2 घंटे से ज्यादा ले चुके हैं, और जो हमारे साथ पेशेंस रख के लोग बैठे हुए हैं उसका भी कुछ दायरा होता है। तो हम लोग जो बाकी रिमेन क्वेश्चन है, या वो आप मुझसे डायरेक्ट या बिरदी सर से पूछ सकते हैं, अशोक सर से पूछ सकते हैं, श्रीधर सर से पूछ सकते हैं। वो सारी जो क्वेश्चन है उसकी आंसर हम लोग देने में सक्षम है। रुचि सर प्लीज ट्रांसलेट। Павел, да, вот на этом мы закончим. У нас еще очень много вопросов, это мы уже как бы и сами лично ответим. Вам спасибо большое, что сегодня с вами уделили нам 2 часа целых. Вот, и спасибо вам большое за это. Вам тоже большое спасибо за то, что пригласили. Спасибо за вашу активность, за вашу работу над проектом. Надеюсь, что я был вам сегодня полезен. Приглашайте еще, обязательно приду.
आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अलग से धन्यवाद कि आप लोग इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट में, अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, और आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया। मुझे आशा है कि आपके सवालों का जवाब मैं पूरी तरीके से दे पाया, और अगली बार भी ज़रूर से बुलाइएगा। मैं हरदम खुशी खुशी आता हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो हमें अपना बेशकीमती समय दिया, और हम कंपनी से जैसे होता है नेक्स्ट मंथ में आपका पक्का प्लान करेंगे, और जो भी जानकारी हमें मिला उसको हम अपने डाउनलाइन तक पक्का पहुंचाएंगे। और जितने भी लोगों ने इस वेबिनार को सुना है वो अपने डाउनलाइन को आज का लिंक और जो कल का वेबिनार फुल जो हुआ था उसका लिंक जरूर करवाए। और रुचिर सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे से ट्रांसलेट किया और हमारी बातों को मिस्टर पावेल तक पहुंचाया। Thank you. Павел, вам тоже спасибо. И как бы мы передадим вчерашние линки, сегодняшние линки, передадим дальше своим людям, с которыми мы общаемся, и это все дело как бы будем и дальше распространять. Спасибо большое. Отлично. Всем спасибо. Всем пока. Большое спасибо за перевод. Пока. Пожалуйста. और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने पेशेंस से हम लोगों को और मिस्टर पावेल को सुना। और हम आशा करते हैं ऐसे ही हर वेबिनार में हमारी संख्या रहेगी, जिससे जो स्पीकर्स हैं और जो गेस्ट है उनका हौसला बढ़ता है, और जो हमारी नॉलेज होती है एक दूसरे के सामने जो हम बातें करते हैं क्लियरिटी आती है, जिससे हमारा बिजनेस करने का जो नजरिया है और भी बढ़ता है। तो सभी को मैं आनंद रॉय अपने तरफ से अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वेबिनार में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।